Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel, Asit Government Rule Guru. Let's compete. Today, I will discuss again Super 15 MCQ 2, second part on fundamental rules. In this part, you will get 15 MCQs with explanation. All the questions are latest one, and according to the present scenario, what type of questions coming in the examination, in the same pattern I made the questions. Definitely the session would be interesting one. So my friends, please subscribe my channel, share my channel and like my channel so that you can get notification for my upcoming videos. With patience, you must listen this MCQ part with explanation. You can get many information. Definitely session would be interesting one, but you must have patience. So again, it is the Super 15 second part MCQ on fundamental rules. So you see my contact WhatsApp number, it is 8327782034, and Telegram channel link is there, t.me/BAPI2034. So my friends, you can join my Telegram channel, and so that you can get notification for my upcoming videos. So please, my friends, please subscribe my channel, share my channel, like my channel, so that you can get excellent videos in subsequent time. So now I am going to discuss 15 MCQs related to the fundamental rules. It is the second part. Question number 1, you see, it is very easy one. Fundamental rule came into force from dash. It is 1st June 1922, 1st January 1922, 1st July 1922, 1st September 1922. Option B is the correct answer. Fundamental rule came into force from 1st January 1922. Right? Very easy question. You see the question number 2. Question number 2, 3 statements given. Here it is clearly given which of the above statements is or are incorrect one. आपको incorrect statement को डिटेक्ट करना है. ठीक है? You see the 3 statements. FR 8, Fundamental Rule 8, mention the powers of interpreting these rules are reserved to the President. Second one, foreign service, in which a government servant receives his pay with the sanction of government from Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a state or the Consolidated Fund of a union territory. Third statement given, government servant on acquiring a lien on a post will cease to hold the lien previously acquired on any other post. These 3 statements given. Statement 1, correct one. You see the Fundamental Rule 8. Actually, the interpretation of the fundamental rules actually reserved to the Honorable President. Very important rule. Just you remember, the powers of interpreting the fundamental rules are reserved to the Honorable President. It is correct one. Second one, foreign service, in which a government servant receives his pay with the sanction of a government from Consolidated Fund of India or the Consolidated Fund of a state और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ए यूनियन टेरिटरी. ये गलत है, क्योंकि ये तो है फॉरेन सर्विस में आप जब जा रहे हो, आपको जो पे मिलता है उसको गवर्नमेंट सैंक्शन करता है, इतना तक तो ठीक है. रिसीव्स हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है. ठीक है, मगर अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, अदर देन कंसोलिडेटेड फंड से पे नहीं मिलता जो एम्प्लॉय फॉरेन सर्विस में जाता है. ठीक है, अब देख लीजिए इसके ऊपर फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 7 देख लीजिए. इसमें क्लियरली मेंशन है, जब आप फॉरेन सर्विस में जा रहे हो आपका पे को सैंक्शन करेगा गवर्नमेंट. ठीक है, मगर आपको जो पे आप रिसीव करोगे इट इज अदर देन, सपोज आप सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और अदर देन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी. तो इट मींस कंसोलिडेटेड फंड से आपको पे नहीं मिलेगा, मगर यहां पर दे दिया कि मिलेगा. और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है,
आपको याद रखना है, सपोज आप फॉरेन सर्विस में जा रहे हो तो आपका पे सैंक्शन गवर्नमेंट ही करेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट क्या है, सपोज अभी आप एक न्यू पोस्ट में आ गए, जब न्यू पोस्ट ज्वाइन किया ऑटोमेटिकली आपका प्रीवियस पोस्ट के ऊपर लीन चला जाएगा। तो भाई गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन एक्वायरिंग लीन ऑन ए पोस्ट, यदि जो न्यू पोस्ट में लीन है तो ऑटोमेटिकली आपका प्रीवियस पोस्ट में लीन टर्मिनेट हो जाएगा। दो पोस्ट में साइमल्टेनियसली लीन नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, सपोज आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर आप जाकर एक न्यू पोस्ट में ज्वाइन किया, मगर टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर गया, ठीक है, और लीन लेकर गया, टेक्निकल रेजिग्नेशन विथ लीन लेकर गया, तो लीन मींस आपका किसमें, प्रीवियस पोस्ट में लीन है। तो वहां पर जब तक आपका न्यू पोस्ट में जब तक प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ है तब तक आपका जो प्रीवियस पोस्ट है उसके ऊपर लीन रहेगा, आप रिटर्न आ सकते हो। मगर वंस प्रोबेशन आपका न्यू पोस्ट में प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा, तो जब प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा न्यू पोस्ट के ऊपर लीन आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रीवियस पोस्ट के ऊपर जो लीन था वो टर्मिनेट हो जाएगा। मगर प्रोबेशन पीरियड तक याद रखिए, यदि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे दिया और लीन लेकर गया, न्यू पोस्ट में ज्वाइन किया, तब तक प्रोबेशन पीरियड में जब तक आपका प्रोबेशन न्यू पोस्ट में क्लियर नहीं हुआ है तब तक आपका प्रीवियस पोस्ट के ऊपर लीन रहेगा। मगर जब प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा और न्यू पोस्ट के ऊपर आपका लीन आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्रीवियस पोस्ट के ऊपर लीन सीज हो जाएगा। तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो यहां पर पूछा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो सेकेंड स्टेटमेंट एक्चुअली इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए, यहां पर फंडामेंटल रूल 9 अंडर सेक्शन 7 में बोला था, ये फॉरेन सर्विस को डिफाइन किया है। आप फंडामेंटल रूल 9 देखिए, उसका सबसेक्शन 7 देखिए, जिसमें गवर्नमेंट सर्वेंट जब फॉरेन सर्विस में जाता है तब उसका पे को गवर्नमेंट सैंक्शन करता है, मगर वो जो पे रिसीव करता है एक्चुअली ही रिसीव द पे अदर देन, सोर्स क्या होगा, तो ही रिसीव द पे अदर देन, ओके, कंसुलेट फंड ऑफ इंडिया, ये क्लियर देखिए, पे विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम एनी सोर्स अदर देन द कंसुलेट फंड ऑफ इंडिया और द कंसुलेट फंड ऑफ स्टेट और द कंसुलेट फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी। कभी कभी आप भाईबा में बैठते हो तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉरेन सर्विस को डिफाइन करो, तो बेसिकली द गवर्नमेंट सर्वेंट रिसीव्स हिज पे विद द सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम एनी सोर्स, जो सोर्स क्या होगा, वो जो पे रिसीव करेगा सोर्स क्या होगा, अदर देन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट और द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी, उसको कंसोलिडेटेड फंड से पे नहीं मिलेगा, ठीक है। फंडामेंटल रूल 8 को मैं बोला था कि जो फंडामेंटल रूल का जो इंटरप्रिटेशन है, ओके, वो रिजर्व है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास, वही इंटरप्रेट कर सकते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। और एक आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल 12A को देख लीजिए, इसमें क्लियरली मेंशन है, जब आपका ट्रांसफर हो गया एक पोस्ट से और एक पोस्ट को, जब आप न्यू पोस्ट को चले गए, जब न्यू पोस्ट के ऊपर लीन आ जाएगा ऑटोमेटिकली आपका पुराना पोस्ट के ऊपर लीन टर्मिनेट हो जाएगा, वही दिया है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट on acquiring a lien on a post will cease to hold the lien previously acquired on any other post। यदि आपका न्यू पोस्ट के ऊपर लीन आ जाएगा, न्यू पोस्ट के ऊपर लीन कब आएगा, जब आपका न्यू पोस्ट में प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड टेम्पररी है। आप न्यू पोस्ट में जस्टिफाई नहीं कर रहे हो तो आपका जॉब जा सकता है, मगर आपका प्रीवियस पोस्ट में क्या है, लीन है, आप जा सकते हो, रिटर्न जा सकते हो, ठीक है। मगर न्यू पोस्ट में जब प्रोबेशन क्लियर हो जाएगा आप परमानेंट हो जाओगे, तो न्यू पोस्ट के ऊपर लीन आ गया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रीवियस पोस्ट के ऊपर लीन था वो टर्मिनेट हो जाएगा। ये फंडामेंटल रूल 12A बोल रहा है, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यू जस्ट इट मींस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन टू डिटेक्ट द रूल नंबर, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। डैश कैरिंग ए डेफिनाइट रेट ऑफ पे सैंक्शनड विदाउट लिमिट ऑफ टाइम, 4 ऑप्शंस गिवन, परमानेंट पोस्ट, टेम्पोररी पोस्ट, टेन्योर पोस्ट, सब्सिस्टेंस ग्रांट। इसमें दिया है देखिए बहुत ही, विदाउट लिमिट ऑफ टाइम डेफिनाइट रेट ऑफ पे,
डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शनड विदाउट लिमिट ऑफ टाइम मींस परमानेंट पोस्ट। क्योंकि टेम्पोररी पोस्ट में क्या होता है, टेम्पोररी पोस्ट एक लिमिट होता है। डेफिनेट पे सैंक्शन होगा टेम्पोररी पोस्ट में, मगर एक टाइम लिमिट होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली टेम्पोररी में हो आपका वो टेम्पोररी पोस्ट से आपको निकाल दिया जा सकता है क्योंकि आप टेम्पोररी पोस्ट में हो। मगर परमानेंट है तो डेफिनेट रेट ऑफ पे मिलेगा विदाउट लिमिट ऑफ टाइम। तो ये जो है आप फंडामेंटल रूल अगेन आ जाइए 9 सबसेक्शन 22 देखिए, इसमें क्लियरली मेंशन है परमानेंट पोस्ट डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शन विदाउट लिमिट ऑफ टाइम। सिमिलरली आप टेम्पोररी पोस्ट को फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 30 देख लीजिए, इसमें क्लियरली मेंशन है कि जो टेम्पोररी पोस्ट है कैरिंग ए डेफिनेट रेट ऑफ पे, डेफिनेट रेट ऑफ पे सैंक्शन होगा बट लिमिट ऑफ टाइम, एक टाइम लिमिट होता है, एक टाइम लिमिट। सपोज आप टेम्पोररी पोस्ट में हो 2 इयर्स के लिए टेम्पोररी पोस्ट में, तो 2 इयर्स के बाद ऑटोमेटिकली आपका जॉब टर्मिनेट हो जाएगा, जो आप जॉब से टर्मिनेट हो जाएंगे। सो इन टेम्पोररी पोस्ट एक्चुअली फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ओके यू कैन रेंडर योर सर्विस, देन आफ्टर दैट ऑटोमेटिकली योर जॉब वुड बी टर्मिनेटेड। ठीक है। और एक टेन्योर पोस्ट है, टेन्योर पोस्ट एक परमानेंट पोस्ट है, याद रखिए। टेन्योर पोस्ट क्या है आप देखिए बहुत जगह में, जैसे आप इलेक्शन कमीशन देखिए, जैसे आप सीबीआई देखिए, ठीक है। तो ये केस में क्या है कि टेन्योर पोस्ट होता है, ठीक है। सपोज आप देखिए जैसे आरबीआई गवर्नर है, ये सब टेन्योर पोस्ट है, ठीक है। टेन्योर मीन्स एक्चुअली एक टेन्योर, आप टेन्योर पोस्ट परमानेंट है मगर एक टेन्योर के लिए काम करोगे। जैसे उनका सपोज आप इलेक्शन कमीशन आप देखिए जो बेसिकली हेड होते हैं उनका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन के बाद वो ऑटोमेटिकली वो उनका पेरेंट पोस्ट को चले जाते हैं। तो टेन्योर पोस्ट एक, ये जो टेन्योर पोस्ट को डिफाइन किया गया है फंडामेंटल रूल 9 आप 30A देख लीजिए, रूल नंबर को देखिए, ठीक है। अभी इसको सब डिस्कस करेंगे। और एक सब्सिस्टेंस ग्रांट है, सब्सिस्टेंस ग्रांट देखिए फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 27 देखिए, मैं रूल नंबर सब मेंशन कर दिया। देखिए सब्सिस्टेंस ग्रांट क्या है, जब आपको मंथली पे नहीं मिल रहा है, जैसे मंथली आप काम कर रहे हो, आपको एक मंथली जो हमारा जैसे पे होता है, जैसे हमारा बेसिक पे पोस्ट के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से हमारा जब रिक्रूटमेंट होता है तब एक बेसिक पे फिक्स है, उसी के ऊपर डीए, उसी के ऊपर एचआरए, ये सब मिलता है कि नहीं। मगर ये जो सब्सिस्टेंस ग्रांट क्या है, एक स्पेसिफिक मंथली पे नहीं है, तो मंथली पे नहीं है तो एक ग्रांट मिलता है उसके जगह, तो वो फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 27 में है, ठीक है। मगर इसमें जो डेफिनाइट रेट ऑफ पे विदाउट लिमिट ऑफ टाइम इट इज परमानेंट पोस्ट। अभी थोड़ा डेफिनेशन को देख लेते हैं, यहां पर देख लीजिए, मैं जो जो बताया वही है। फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 22 परमानेंट पोस्ट के ऊपर है, कैरिंग ए डेफिनेट रेट ऑफ पे विदाउट लिमिट ऑफ टाइम। फंडामेंटल रूल 927 सब्सिस्टेंस ग्रांट में बताया था, ये मंथली ग्रांट मेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज नॉट इन रिसिप्ट ऑफ पे और लीव सैलरी। तो उसको कुछ मंथली पे की लीव सैलरी नहीं मिल रहा है, उसका कोई फिक्स नहीं किया गया है मंथली पे, तो उसके जगह में एक ग्रांट उसको मिलता है, मंथली ग्रांट मिलता है, ठीक है, वो सब्सिस्टेंस ग्रांट है। ये फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 27 में है। फिर टेम्पोररी पोस्ट में आ जाइए, टेम्पोररी पोस्ट में भी डेफिनेट रेट ऑफ पे आपको मिलेगा बट एक लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ठीक है। और फंडामेंटल रूल 9 30A देखिए, सबसेक्शन 30A टेन्योर पोस्ट है, ये टेन्योर पोस्ट में बताया था परमानेंट पोस्ट है, मगर एक स्पेसिफिक टेन्योर के लिए आप काम करोगे, व्हिच एन इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट मे नॉट होल्ड फॉर मोर देन ए लिमिटेड पीरियड। आप जो पोस्ट को होल्ड करोगे वो लिमिटेड पीरियड से ज्यादा नहीं होगा, एक लिमिटेड पे, जैसे आप में बताया था जैसे आरबीआई गवर्नर है कि जैसे सीबीआई है कि इलेक्शन कमीशन है, उनका जो हेड होते हैं उनको गवर्नमेंट चूज करता है, वो एक लिमिटेड पीरियड एक टेन्योर पोस्ट होता है, ठीक है। टेन्योर पोस्ट के बाद आप आपका पेरेंट डिपार्टमेंट को चले जाओगे, ठीक है। तो ये है टेन्योर पोस्ट। तो टेन्योर जो जस्ट यू रिमेंबर यू कैन नॉट होल्ड ए पोस्ट फॉर मोर देन ए लिमिटेड पीरियड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा देख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे।
ट्रैवलिंग अलाउंस डज नॉट इंक्लूड। आप फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 32 देख लीजिए, ट्रैवलिंग अलाउंस के ऊपर है। आपको जो पब्लिक इंटरेस्ट में आप जब ट्रैवल कर रहे हो, जैसे आप टूर में जा रहे हो कि आप ट्रेनिंग में जा रहे हो, ठीक है, तो उसमें जो आप ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है, ठीक है, आप जब ट्रैवल कर रहे हो उसमें एक्सपेंसेस होता है, पब्लिक इंटरेस्ट में आप जा रहे हो, ओके, फॉर सम इट मींस गवर्नमेंट वर्क ना, एंड गवर्नमेंट आप जो सर्विस दे रहे हो गवर्नमेंट में, वो सब पब्लिक फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। तो जब पब्लिक इंटरेस्ट में आप कोई टूर में जा रहे हो कि ट्रेनिंग में जा रहे हो टू अप टू डेट योर नॉलेज, ये सब केस में जो एक्सपेंसेस होता है जर्नी पीरियड में, ठीक है, वो ट्रैवलिंग अलाउंस है। तो इसमें बोला है ट्रैवलिंग अलाउंस डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो उसमें दिया है अलाउंसेस ग्रांटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ कन्वेयंसेस। तो ये तो ट्रैवलिंग ये तो इंक्लूड होगा, क्योंकि मेंटेनेंस कन्वेयंस, सपोज आप क्या कर रहे हो, रेगुलरली आप ऑफिशियल वर्क के लिए आप आपका बाइक यूज कर रहे हो, आपका बाइक में कुछ डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो, तो वो आपको कन्वेयंस अलाउंस मंथली मिल रहा है कि नहीं। तो जैसे आपका कार आप यूज कर रहे हो, आपका जॉब है कि आप ऑफिशियल वर्क के लिए एवरीडे कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, तो उस केस में आपको कन्वेयंस अलाउंस मिल रहा है, तो वो ट्रैवलिंग अलाउंस में इंक्लूड होगा, ठीक है। अलाउंसेस ग्रांटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हॉर्सेस, आप देखिए डिफेंस डिपार्टमेंट में कि पुलिस डिपार्टमेंट में हॉर्सेस है, तो उसका मेंटेनेंस के लिए एक अलाउंस मिलता है, हॉर्स अलाउंस एक मिलता है, ठीक है, हॉर्सेस का मेंटेनेंस के लिए, तो वो भी ट्रैवलिंग अलाउंस में इंक्लूड होगा, ये भी ट्रैवलिंग अलाउंस में इंक्लूड होगा। अलाउंसेस ग्रांटेड फॉर द टेंट्स, जो आप जैसे आप सर्वे टीम है, जब सर्वे टीम सर्वे के लिए जाता है वो टेंट लेकर जाता है, टेंट आइटम लेकर जाएंगे, वो वहां पर रहना है उनको और फिर सर्वे करना है कि नहीं, तो वो भी ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ये तीनों ट्रैवलिंग अलाउंस में इंक्लूड होता है, मगर यहां पर दिया है ट्रैवलिंग अलाउंस डज नॉट इंक्लूड। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आप याद रखिए ट्रैवलिंग अलाउंस में कन्वेयंस अलाउंस, हॉर्स अलाउंस, टेंट अलाउंस, ये सब इंक्लूड होगा ट्रैवलिंग अलाउंस में। और ये कहां पर मेंशन है, फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 32 देख लीजिए, तो यहां पर जो आंसर है डी है, नॉन ऑफ द अबव। अब देख लीजिए उसका डेफिनेशन देख लीजिए, मैं अभी बताया था फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 32 ट्रैवलिंग अलाउंस, जैसे आप ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू कवर द एक्सपेंसेस व्हिच ही इनकर्स इन ट्रैवलिंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक सर्विस। जैसे आपको बताया टूर में जा रहे हो कि ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, और ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो टू अप टू डेट द नॉलेज सो दैट यू कैन प्रोवाइड क्वालिटेटिव सर्विस टू द पब्लिक, कि आप टूर में जा रहे हो, ऑलवेज इट मीन्स बेसिकली इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज they are rendering their services for the benefit of the public, okay, they are providing service to the public, so they are providing qualitative service to the public। तो इसमें जब आपका ट्रैवल होता है, आपका जो एक्सपेंसेस इनकर होता है, वही ट्रैवलिंग अलाउंस है। डेफिनेशन को देख लीजिए, इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, मेंटेनेंस ऑफ कन्वेयंसेस, जैसे मैं अभी बताया कि आप ट्रैवल कर रहे हो, ऑफिशियल वर्क के लिए ट्रैवल कर रहे हो, आपका बाइक लेकर कि आपका कार लेकर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो उसमें आपको कन्वेयंस अलाउंस मिल रहा है, हॉर्स अलाउंस की टेंट अलाउंस, ये सब ट्रैवलिंग अलाउंस में इंक्लूड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ठीक है। और रूल पोजीशन को भी याद रखिए, फंडामेंटल रूल 9 अंडर सेक्शन 32। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 को चलेंगे। अंडर व्हिच ऑफ द बिलो सर्कमस्टांसेस ऑनरेरियम कैन बी पेड टू द एम्प्लॉइज। जो यहां पर कुछ सर्कमस्टांसेस है कहां पर ऑनरेरियम मिलता है, तो आप देखिए डेफिनेशन को देखेंगे ऑनरेरियम का, इसका डेफिनेशन देखेंगे आप, फंडामेंटल रूल 9 को चलिए सबसेक्शन 9 में देखिए, मगर किस कंडीशन में, किस सर्कमस्टांसेस में ऑनरेरियम मिलेगा और किस सर्कमस्टांसेस में ऑनरेरियम नहीं मिलेगा, ये कहां डिस्कस है, आप फंडामेंटल रूल 46 आप देखिए सबसेक्शन बी में देखिए, उसका सेकंड पार्ट में देखिए, इसमें क्लियरली, इसी में क्लियरली मेंशन है कि इन व्हिच सर्कमस्टांसेस ऑनरेरियम गिवन और इन व्हिच सर्कमस्टांसेस
इट मीन्स ऑनरारियम कैन नॉट बी रिलीज्ड, ऑनरारियम कैन नॉट बी पेड। ठीक है, वही पूछा है कुछ सर्कम। तो आपको ये ऑनरारियम क्या है, आपको स्पेशल वर्क कर रहे हो, ऐसा कुछ लेबोरियस वर्क कर रहे हो जिसमें आपको एक रिवॉर्ड मिलता है कि नहीं। जैसे आप मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। आज इंक्वायरी ऑफिसर, ओके, सपोज यू गेट अपॉर्चुनिटी आज इंक्वायरी ऑफिसर टू इंक्वायरी अबाउट एनी टाइप ऑफ सपोज इंक्वायरी, यू गो फॉर इंक्वायरी, ठीक है, कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर, आप कुछ ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आपको कुछ इट मीन्स डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करना है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग टाइम में। तो इंक्वायरी ऑफिसर हो कि प्रेजेंटिंग ऑफिसर हो कि गेस्ट फैकल्टी, आप गेस्ट फैकल्टी आकर में आज गेस्ट फैकल्टी वर डिलीवरिंग लेक्चर, तो ये सब केस में ऑनरेरियम मिलता है। ठीक है, आप मगर आपका खुद का वर्क में कुछ एडिशनल ऐसा हो जाता है तो ऑनरेरियम नहीं मिलेगा। यहां पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। टेम्पररी इंक्रीजेस इन वर्क, इसमें ऑनरेरियम नहीं मिलेगा क्योंकि आपका टेम्पररी पीरियड के लिए कभी कभी कुछ वर्क पेंडिंग है तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा आवर्स आप शेयर किया तो उसमें ऑनरेरियम नहीं मिलेगा। When a government servant performs duties of another sanctioned post, when a government servant performs duties of another sanctioned post in addition to the normal duties, इसमें आपको एक स्पेशल पे मिलेगा, इसमें आपको स्पेशल पे मिलेगा क्योंकि आपका नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हो और उसके साथ आपको मैं बताया था आप स्पेशल पे देख लीजिए। स्पेशल पे फंडामेंटल रूल 9 अंडर सेक्शन 25 फर्स्ट सुपर 15 एमसीक्यू मेरा देखिए फर्स्ट पार्ट। तो ये स्पेशल पे होगा। स्पेशल पे कब मिलता है? स्पेशल पे जब कोई एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दिया जाता है, आप आपका नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हो प्लस कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया तो उस केस में स्पेशल पे, तो उसमें भी ऑनरेरियम नहीं मिलेगा। स्पेशल वर्क इन आर्बिट्रेशन केस, ऐसा कुछ डिस्प्यूट है, सपोज गवर्नमेंट एंड कोई प्राइवेट पार्टी के बीच में कुछ डिस्प्यूट है, उसमें कुछ आप वर्क कर रहे हो तो उसमें कुछ ऑनरेरियम नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल वर्क है, कोई डिस्प्यूट है उसका कुछ पेपर आपको पेपर सपोज यू कैन अरेंज एंड यू कलेक्ट सम डाटा, तो इसमें ऑनरेरियम नहीं मिलेगा। गेस्ट फैकल्टी डिलीवरिंग लेक्चर्स इन हिंदी वर्कशॉप, इसमें ऑनरेरियम मिलेगा क्योंकि मैं बताया गेस्ट फैकल्टी के आकार में आप जा रहे हो, वहां पर कुछ लेक्चर डिलीवर कर रहे हो, इंक्वायरी ऑफिसर के आकार में जा रहे हो, प्रेजेंटिंग ऑफिसर के आकार में जा रहे हो, कि आपका रीजनल लैंग्वेज को आप ट्रांसलेट कर रहे हो टू इंग्लिश एंड हिंदी, इस केस में ऑनरेरियम मिलेगा। तो ऑनरेरियम बेसिकली इट स्पेशल वर्क, ओके, स्पेशल वर्क जो आप कर रहे हो, स्पेशल वर्क गवर्नमेंट का परमिशन लेके आप स्पेशल वर्क कर रहे हो और उसमें आपको एक अवार्ड के आकार में ऑनरेरियम मिलता है। ठीक है कि नहीं? तो ये वही है, मगर इसमें याद रखना है ये जो ऑनरेरियम है वो किससे, कौन सा सोर्स से, वो कंसोलिडेटेड फंड से मिलेगा। फी जो मिलेगा वो अदर देन सोर्सेस फ्रॉम अदर देन कंसोलिडेटेड फंड, बट ऑनरेरियम कंसोलिडेटेड फंड से मिलेगा। और ये स्पेशल वर्क के लिए, कुछ लेबोरियस वर्क, स्पेशल वर्क, आप गवर्नमेंट का परमिशन लेके आप कुछ स्पेशल वर्क कर रहे हो तो उसमें आपको एक अवार्ड दिया जाता है, वही ऑनरेरियम है। मगर लास्ट वन इज द करेक्ट आंसर, सो ओनली 4 केस में आपको ऑनरेरियम मिलेगा। ठीक है, चलो उसके ऊपर कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। मैं अभी बताया था फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 9, ये ऑनरेरियम का डेफिनेशन है, चाहे रिकरिंग हो कि नॉन रिकरिंग पेमेंट्स, वो ग्रांटेड होता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, मगर कौन सा सोर्स से मिलता है ना, फ्रॉम द आ गया कंसोलिडेटेड फंड। सपोज आप सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरी से मिल रहा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ यूनियन टेरिटरी। और रेम्युनरेशन क्यों मिलता है? स्पेशल वर्क, और ये स्पेशल वर्क ऑकेजनल हो सकता है और रेगुलरली इंटरमीडिएट कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, तो ऑकेजनली आप मिल सकता है और रेगुलरली मिल सकता है, बार बार मिल सकता है। तो ये है, ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन एक्चुअली फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 9 डिफाइन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो ग्रांट होता है गवर्नमेंट सर्वेंट को, किससे ग्रांट होता है ना, फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड से ग्रांट होता है। क्यों ग्रांट होता है ना, फॉर स्पेशल वर्क। ठीक है, और स्पेशल वर्क ओकेजनल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशल वर्क ओकेजनली हो सकता है और वो रिपीटेड हो सकता है, इंटरमीडिएट मीन्स रिपीटेड हो सकता है। ठीक है,
और कुछ डेफिनेशंस को चलेंगे। आप यहां पर देख लीजिए थोड़ा फीस ऑनरेरियम, इसके ऊपर मैं डिफाइन करता हूं। देखिए फीस के ऊपर जो है फंडामेंटल रूल 46A, इसका डेफिनेशन आप देखेंगे। फी का डेफिनेशन मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। आप दिया है फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन देख लीजिए 6A। ओके, ये फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 6A में फी को डिफाइन किया गया है। तो फी क्या है? गवर्नमेंट सर्वेंट में बी परमिटेड इफ दिस कैन बी डन विदाउट। तो आपको फी कब मिलेगा? जब आप कोई सर्विस कर रहे हो तो उसमें आपका ऑफिशियल वर्क हैम्पर नहीं हो रहा है। यू डू द सर्विस बट इट मीन्स इट डज नॉट हैम्पर योर ऑफिशियल वर्क। ओके, सो वही दिया है, कैन बी डन विदाउट detriment to his official duties and responsibilities to perform a specified service or a series of services for a private person। आप कोई प्राइवेट पर्सन के लिए काम कर रहे हो, प्राइवेट बॉडी, पब्लिक बॉडी, ये एडमिनिस्ट्रिंग ए लोकल फंड, और इसमें आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है। तो चाहे वो रेम्यूनरेशन रिकरिंग हो सकता है और नॉन रिकरिंग हो सकता है, तो वही है। और ये जो फी जो मिलता है डेफिनेशन में क्लियरली बताइए, सोर्सेस अदर देन। एक्चुअली जो फी है वो कंसोलिडेटेड फंड से नहीं मिलता है, याद रखना है। और इसमें क्या है, आपको परमिशन लेना चाहिए, गवर्नमेंट का परमिशन ले रहे हो, ठीक है। और जाकर कोई प्राइवेट पार्टी के लिए, कोई प्राइवेट पर्सन की प्राइवेट बॉडी, कोई पब्लिक बॉडी, कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कोई ऑटोनोमस बॉडी, कोई लोकल फंड में आप सर्विस दे रहे हो। मगर जब आप वहां पर सर्विस दे रहे हो तो आपका ऑफिशियल वर्क कुछ हम पर नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो आपको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, चाहे वो रिकरेंट हो सकता है कि नॉन रिकरेंट हो सकता है, ठीक है, उसी को हम फीस बोलते हैं। और इसका डेफिनेशन जो है वो क्लियरली इसी में मेंशन है। रूल नंबर देख लीजिए, ठीक है। तो रूल नंबर आप देखिए, फंडामेंटल रूल 46 जो फर्स्ट बीट है ए में क्लियरली मेंशन किया गया है। मगर इसमें याद रखना है कि अदर देन, ये जो सोर्स है ये अदर देन कंसोलिडेटेड फंड, अदर देन कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है, इससे मिलता है, ठीक है। और इसमें देखेंगे जस्ट ऑनरेरियम के ऊपर है फंडामेंटल रूल 46B। अभी डेफिनेशन के ऊपर मैं बताया था, आप फंडामेंटल रूल 9 सबसेक्शन 9 देख लीजिए, इसमें ऑनरेरियम का डेफिनेशन अभी मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पर दे दिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट may grant or permit a government servant to receive an honorarium as remuneration for work performed which is occasional or intermittent in character and ये बहुत इंपॉर्टेंट है, either so laborious or of such special merit as to justify a special reward। तो आपको जो ऑनरेरियम जिस वर्क के लिए फर्स्ट आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना चाहिए, यू मस्ट टेक द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। आप ऐसा कुछ लेबोरियस वर्क कर रहे हो और कुछ स्पेशल मेरिट, जो वर्क है उसका कुछ स्पेशल मेरिट है, स्पेशल वर्क है, उसमें आपको रिवार्ड मिलता है, ठीक है। और वो ये ऑकेजनल हो सकता है और रिपीटेड भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो मिलेगा वो बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड से मिलेगा। सोर्स जो है, इसमें जो सोर्स है वो कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है। तो डिफरेंस आपको पता चल गया, फी जो है, फी अदर देन कंसोलिडेटेड फंड, मगर ऑनरेरियम फ्रॉम द सोर्सेस ऑफ कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। तो ऑनरेरियम कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है मगर फी अदर देन कंसोलिडेटेड फंड। और इसके लिए परमिशन चाहिए, विदाउट परमिशन आप ऑनरेरियम रिसीव नहीं कर सकते। यू टेक द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, द गवर्नमेंट हैज गिवन परमिशन फॉर स्पेशल वर्क, यू आर डूइंग स्पेशल वर्क, राइट, यू आर डूइंग सम लेबोरियस वर्क, फॉर दैट रीजन इट मीन्स रिवार्ड वुड बी गिवन टू यू। वो जो रिवार्ड है वही ऑनरेरियम है, ठीक है। और ये जो मिलता है वो कंसोलिडेटेड फंड से मिलता है, और ये ओकेजनली मिल सकता है और रिपीटेडली भी मिल सकता है, ठीक है। और उसमें और एक कुछ पॉइंट देख लीजिए, यहां पर वो दे दिया, ऑनरेरियम आपको नहीं दिया जाएगा यदि आप गवर्नमेंट का परमिशन नहीं लेंगे, ऑनरेरियम नहीं मिलेगा। और ये जो अमाउंट है इट हैज बीन सेटल्ड इन एडवांस, ठीक है, इसको एडवांसली सेटल करना है। तो आपको ऑनरेरियम के ऊपर कुछ एग्जांपल में दे दिया, जैसे गेस्ट फैकल्टी के आकार में आप जाकर डिलीवरिंग लेक्चर की, इंक्वायरी ऑफिसर की, प्रेजेंटिंग ऑफिसर
कि एज अ ट्रांसलेटर आप रीजनल लैंग्वेज को इंग्लिश हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हो, ये जो स्पेशल वर्क के लिए आपको ऑनरेरियम मिलेगा, ठीक है। और इसमें आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना है, राइट, और इट मस्ट बी सेटल्ड इन एडवांस। और एक कंबाइंड है 46C, यहां पर फीस एंड ऑनरेरिया के ऊपर डिफाइन किया गया है। इन द केस ऑफ बोथ फीस एंड ऑनरेरिया द सैंक्शनिंग अथॉरिटी शैल रिकॉर्ड इन राइटिंग दैट ड्यू रिगार्ड हैज बीन पेड टू द जनरल प्रिंसिपल एनुंशिएटेड इन फंडामेंटल रूल 11 बोल रहा है, आप एक पर्टिकुलर आपको पोस्ट मिला, पर्टिकुलर पोस्ट मिला, वो आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन मिला, तो आप इस ये जो पर्टिकुलर पोजीशन पर्टिकुलर पोस्ट में आपका एक पे फिक्स हुआ, तो उसमें जो भी आप काम करोगे वो वही पे मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। ये रूल 11 बोल रहा है कि आप में मेरा एक्स्ट्रा वर्क हो गया और मेरा पे में कुछ ऐड कर दिया जाए, ऐसा नहीं। मगर स्पेशल पे कब मिलता है, जब आप कुछ डिफिकल्ट वर्क कर रहे हो और आपको कुछ एडिशनल वर्क मिल गया। आप एक पोस्ट में काम कर रहे हो, आपका नॉर्मल पोस्ट में आप काम कर रहे हो, फिर एक एडिशनल पोस्ट का काम आपको दे दिया गया, तो वहां पर एडिशनल हो गया ना, तो उस केस में स्पेशल पे होगा। अदरवाइज जो रूल 11 बोल रहा है, जिस पोजीशन आपको मिला, जिस पोस्ट आपको मिला, उसमें आपका एक पे फिक्स हुआ है, तो उसको आपको जस्टिफाई करना है, काम करना है। उसमें कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है, ये नहीं कि हम एक्स्ट्रा वर्क कर दिया, जो वर्क सपोज यू हैव नॉट कंप्लीटेड वर्क इन टाइम, सो देन फॉर फ्यू डेज एक्चुअली यू डू द सर्विस फॉर एक्स्ट्रा आवर्स टू कंप्लीट द वर्क, यानी इट मींस आप डिमांड नहीं करोगे कि मुझे मेरा पे में कुछ ऐड कर दिया जाए, तो ये रूल 11 बोल रहा है। मगर इसमें जो फीस एंड ऑनरेरिया है, इसमें गवर्नमेंट परमिशन देता है कि फी में जैसे आपका ऑफिशियल वर्क हम पर नहीं होगा, आप कोई प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट बॉडी, पब्लिक बॉडी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उसके लिए काम कर सकते हो और आपको फी मिलेगा, तो इस केस में आपको एक एक्स्ट्रा पे मिला। सिमिलरली ऑनरेरियम, आप एक स्पेशल वर्क कर रहे हो, गवर्नमेंट का परमिशन लिया, आप एक स्पेशल वर्क कर रहे हो, तो उसमें आपको एक रिवार्ड मिलता है, मॉनेटरी रिवार्ड, वो ऑनरेरियम है। वो ये रूल 11 को ब्रीच करता है, क्योंकि रूल 11 बोल रहा है आप जिस पोस्ट के लिए हो उसको जस्टिफाई कर रहे हो, तो उसमें आपका एक पे फिक्स हुआ है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा पे उसमें ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। मगर इसमें जो है, ये जो फीस एंड ऑनरेरिया आपको मिलता है, कुछ रीजन्स रिकॉर्ड किया जाएगा कि इसी रीजन के वजह से कुछ एक्स्ट्रा मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन मिल रहा है। तो फंडामेंटल रूल 46 जो थर्ड बीट सी ये बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, where an ad hoc promotion is followed by regular appointment without break, the option is admissible for pay fixation as from the date of initial appointment or promotion to be exercised within in dash from the date of such regular appointment। आप याद रखिए, ये ad hoc promotion followed by regular appointment, एक्चुअली आप याद रखना है, जो ad hoc प्रमोशन फॉलोड बाय रेगुलर अपॉइंटमेंट, तो ओनली ad hoc प्रमोशन जब होगा, जब आपको प्रमोशन होता है तो अब आपका पे फिक्सेशन होगा, प्रमोशन टाइम में पे फिक्सेशन होगा। तो जिस डेट में आप प्रमोशन पोस्ट में ज्वाइन कर लिए, उसी का 1 मंथ के अंदर आपको ऑप्शन देना है, याद रखिए, उसी का 1 मंथ, जिस डेट में आप ज्वाइन कर लिए उसी का 1 मंथ के अंदर आपको ऑप्शन देना है कि मेरा जो पे फिक्सेशन होगा वो बेसिकली जिस डेट में मैं ज्वाइन किया उससे होगा, नहीं तो आपका पुराना पोस्ट जो था, ओल्ड पोस्ट, जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा, ओल्ड पोस्ट के ऊपर जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा, वहां से मेरा पे प्रमोशन फिक्स होगा। तो 2 ऑप्शन, आइदर और, मगर यह ऑप्शन देना है जिस डेट में आप ज्वाइन करोगे, आपको 1 मंथ के अंदर ऑप्शन देना है, ठीक है। इसमें ऑप्शन क्या है, जब आपका प्रमोशन का बात आ जाता है, मैं बता देता हूं क्लियरली, जब प्रमोशन का बात आ जाता है तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन है कि जो पे फिक्सेशन होगा, पे फिक्सेशन होगा, फर्स्ट ऑप्शन है मेरा, जो सपोज मैं ऑप्शन दिया, पे फिक्सेशन मेरा होगा, इट मींस फ्रॉम द डे ऑफ प्रमोशन, फ्रॉम द डे ऑफ प्रमोशन,
ठीक है, मेरा पे फिक्सेशन होगा, राइट। ये एक ऑप्शन है, क्लियर। और एक ऑप्शन है, और एक ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन, नहीं अभी मैं मेरा वही ओल्ड पेस्ट, जो ओल्ड पोस्ट के ऊपर जो पे है वही मैं लूंगा, जो ओल्ड पोस्ट का जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा वहां से मेरा पे फिक्सेशन होगा। तो वही है जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट से, ओके, फ्रॉम इंक्रीमेंट, फ्रॉम नेक्स्ट इंक्रीमेंट बोलता हूं, फ्रॉम नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑफ ओल्ड पोस्ट, इसमें हो सकता है आइदर और। तो आपको ये जो ऑप्शन देना है 1 मंथ के अंदर देना है, ठीक है। तो इमीडिएटली आपको याद रखना है, जब आप कोई प्रमोशन आपका हो गया, ज्वाइन कर रहे हो प्रमोशन पोस्ट में, तब आपको ऑप्शन देना है, ठीक है। मगर कुछ केस है, जैसे आपका एडहॉक प्रमोशन हुआ, एडहॉक प्रमोशन, ओनली एडहॉक प्रमोशन, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सपोज आपका जो प्रमोशन हुआ वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हुआ, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में हुआ, इसमें ऑप्शन नहीं दिया जाएगा कि आप एक्स कैडर पोस्ट में चले गए, प्रमोशन में एक्स कैडर को चले गए, डेपुटेशन में एक्स कैडर पोस्ट में, तो इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। एडहॉक प्रमोशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका प्रमोशन हो गया कि एक्स कैडर, जब आप डेपुटेशन में जा रहे हो एक्स कैडर पोस्ट में, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। मगर इसमें याद रखिए, यहां पर जो दे दिया, एडहॉक प्रमोशन इज फॉलोड बाय रेगुलर अपॉइंटमेंट, आप एडहॉक में गए थे मगर उसके बाद आपका रेगुलर अपॉइंटमेंट हो गया वो पोस्ट में, तो अभी ऑप्शन आ जाएगा, जिस डेट में आपको रेगुलर अपॉइंटमेंट जो मिला, आप जिस डेट में ज्वाइन, माने इट मींस माना जाएगा जिस डेट में वो इफेक्टिव हुआ, रेगुलर अपॉइंटमेंट इफेक्टिव हुआ, उसी से 1 मंथ के अंदर आपको ऑप्शन देना है कि मेरा जो पे फिक्सेशन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, कि नहीं मेरा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं होगा, अभी मैं मेरा पे लूंगा ओल्ड पोस्ट के हिसाब से मेरा पे रहेगा, मगर जो ओल्ड पोस्ट का जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आ रहा है उसी से मेरा पे फिक्सेशन होगा, ठीक है। तो वही दिया है, तो याद रखिए ओनली एडहॉक प्रमोशन में नहीं होता है, ऑप्शन नहीं मिलेगा पे फिक्सेशन के लिए, ऑप्शन नहीं है, मगर एडहॉक प्रमोशन फॉलोड बाय रेगुलर अपॉइंटमेंट आपको ऑप्शन मिलेगा। तो ऑप्शन जो आपको ऑप्शन मिलेगा विद इन 1 मंथ आपको ऑप्शन को चूज करना है, ठीक है, कि मेरा जो पे फिक्सेशन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और फ्रॉम द नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑन ओल्ड पोस्ट। यदि आप जब प्रमोशन आपको मिलता है, जैसे आप देखिए एक एग्जांपल बता देता हूं, अभी आप लेवल 8 में थे, यहां पर लेवल 9, ये आपका ओल्ड पोस्ट था, अभी इस लेवल को आप चले गए, इसमें सेल 5 में थे, ठीक है। तो इसमें एक इंक्रीमेंट मिलेगा, जब प्रमोशन होता है तब आपको एक इंक्रीमेंट मिलेगा, यहां पर एक इंक्रीमेंट मिला, सपोज यहां पर इंक्रीमेंट मिलने के बाद आपका सपोज आ गया 81,200, आप यहां पे थे, आप सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं 78,800 में थे, सपोज फॉर एग्जांपल, इमेजिनरी एग्जांपल। अभी आप जब आपका प्रमोशन हुआ लेवल 8 टू लेवल 9 आपका प्रमोशन हुआ, ठीक है, तब आपका यहां पे एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा, और ये अमाउंट देखेंगे हम कि ये लेवल 9 में है कि नहीं, यदि नहीं है उससे ज्यादा जो है वो फिक्स हो जाएगा, ठीक है, वही है कि नहीं। तो एक आपका जो लेवल ओल्ड पोस्ट का लेवल है उसमें एक इंक्रीमेंट मिलेगा, और वो अमाउंट को हम देखेंगे लेवल 9 में कि वो अमाउंट है कि नहीं तो उससे ज्यादा जो होगा वो आपका पे फिक्स होगा। अदरवाइज सपोज ये नॉर्मली फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, सपोज और एक है, यदि आप बोल रहे हो नहीं अभी मैं ओल्ड पोस्ट का जो पे है मोर वही रहेगा, मगर मेरा जो पे फिक्सेशन होगा फ्रॉम द सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट ऑन ओल्ड पोस्ट, फ्रॉम द सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट ऑन ओल्ड पोस्ट, जो ओल्ड पोस्ट में जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा वहां से मेरा पे फिक्सेशन होगा। तो वहां पर ऑटोमेटिकली आपको, जैसे आप लेवल 8 में हैं और लेवल 9 यहां पर प्रमोशन हो गया, यहां पर आप सेल 5 में थे, सेल 6, सेल 7, तो इसमें 2 इंक्रीमेंट सेल 5 में थे, तो आप ऑप्शन क्या चूज किया कि ऑप्शन चूज किया मेरा जो पे फिक्सेशन होगा फ्रॉम द सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट ऑन ओल्ड पोस्ट, ये है कि नहीं।
तो जब आपका इंक्रीमेंट हो गया ओल्ड पोस्ट में, इंक्रीमेंट एक हो गया, सेल 5 में थे, सेल 6 में आ गए, क्योंकि आप ओल्ड पोस्ट का पे अभी ले रहे थे, तो अभी सेल 5 में थे, सेल 6 में आ गए। अच्छा, यहां से आपका पे फिक्सेशन होगा, तो जब आप लेवल 9 में जाएंगे पे फिक्सेशन होगा और एक इंक्रीमेंट मिलेगा, तो एक ही साथ 2 इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। और 2 इंक्रीमेंट मिलने के बाद सपोज यहां पर अमाउंट है 81,200, आप 5 में थे, तो आप बोल दिया कि मेरा ओल्ड पोस्ट के ऊपर जो सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट होगा वहां से मेरा पे फिक्सेशन होगा, तो एक नॉर्मली आपका इंक्रीमेंट हुआ, फिर उसके बाद आप जानते हो जब लेवल 9 को आप जाओगे और एक इंक्रीमेंट मिलेगा, तो इसमें 2 इंक्रीमेंट आपको मिला। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल सेल 7 में आपका 81,200 है, हम देखेंगे लेवल 9 में कौन सा सेल में 81,200 है कि नहीं, यदि नहीं है उससे ज्यादा अमाउंट आपको फिक्स हो जाएगा, ठीक है। मगर ये जो ऑप्शन चूज करना है विद इन 1 मंथ, ठीक है। एडहॉक प्रमोशन इज फॉलोड बाय रेगुलर अपॉइंटमेंट, रेगुलर अपॉइंटमेंट होना चाहिए, ओनली एडहॉक प्रमोशन में आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इसको आप देख लीजिए। जो पे फिक्सेशन होता है ना, ये इसको थोड़ा बताता हूं। फंडामेंटल रूल 22 उसका सबसेक्शन आई है, उसका सबसेक्शन 1 देख लीजिए, उसका फास्ट बीट देख लीजिए। ये पे फिक्सेशन बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। फंडामेंटल रूल 22, ओके, उसका फास्ट सबसेक्शन आई, तो आई का जो फास्ट सबसेक्शन आई है उसका फास्ट बीट 1 देख लीजिए, ओके। उसमें 4 बीट्स है, 1 2 3 4, इसमें 1 देखिए, उसका 1 का फास्ट बीट देखिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज 1 मंथ टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन आफ्टर बीइंग प्रमोटेड। आपका प्रमोशन होने के बाद, तो जिस डेट में आप प्रमोशन पोस्ट में ज्वाइन कर लिए, जिस डेट में आप प्रमोशन पोस्ट में ज्वाइन कर लिए, उसी डेट से 1 मंथ के अंदर आपको ऑप्शन देना है कि योर पे फिक्सेशन शुड बी डन फ्रॉम द अपॉइंटमेंट, और एक ऑप्शन है, और पे फिक्सेशन शुड बी डन फ्रॉम द सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट ऑन ओल्ड पोस्ट। आप ये बोलोगे कि मेरा प्रमोशन में जिस डेट में प्रमोशन किया वहां से मेरा पे फिक्सेशन होगा, नहीं तो मुझे मेरा अभी मैं ओल्ड पोस्ट में रहूंगा, ओल्ड पोस्ट का पे रहेगा, ओल्ड पोस्ट का पे रहेगा, जो ओल्ड पोस्ट का जो नेक्स्ट जो है सब्सिक्वेंट जो इंक्रीमेंट मुझे मिलेगा वहां पे मेरा पे फिक्सेशन होगा। समझ में आ रहा है? तो ये ऑप्शन तो 1 मंथ के अंदर आपको देना है। ये कहां डिफाइन किया गया है अभी मैं बता दिया था, ऑप्शन बी। आप देखिए फंडामेंटल रूल 22, उसमें 4 पार्ट है, आई डबल आई ट्रिपल आई आई भी। तो फास्ट पार्ट को देखिए, उसका फास्ट सबसेक्शन 1 को देखिए, और 1 का फास्ट बीट देखिए, ये फिक्सेशन के ऊपर क्लियरली मेंशन है, ठीक है। आप जिस डेट में ज्वाइन कर रहे हो प्रमोशन पोस्ट में, उसका 1 मंथ के अंदर आपको ऑप्शन देना है कि आप फ्रॉम द अपॉइंटमेंट आपका पे फिक्सेशन होगा कि फ्रॉम द सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट ऑन ओल्ड पोस्ट, वहां से पे फिक्सेशन होगा, ठीक है। मगर आपको इसमें ध्यान देना है, यदि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है और आप प्रमोट हो रहे हो और आप एडहॉक प्रमोशन हुआ कि आप एक्स कैडर पोस्ट में सपोज डेपुटेशन में चले गए, वहां पर आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा पे फिक्सेशन के लिए, वहां पर ऑप्शन नहीं है। तो यहां पर जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज 1 मंथ टू एक्सरसाइज देयर ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन आफ्टर बीइंग प्रमोटेड। तो यहां पर 3 ऑप्शंस दिया है, हम करेक्ट स्टेटमेंट को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड टू फिक्स पे फ्रॉम द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज टू फिक्स पे फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन और फ्रॉम द डेट ऑफ द नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन द प्रीवियस पोस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करेक्ट है, क्योंकि आप जो पे फिक्सेशन का जो ऑप्शन आपको दिया जाएगा, जिस डेट में आप प्रमोशन पोस्ट में ज्वाइन करोगे वहां से 1 मंथ के अंदर आपको ऑप्शन देना है। ऑप्शन में आप मेंशन करोगे मेरा जो पे फिक्सेशन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन, नहीं तो और अभी में मेरा जो ओल्ड प्रीवियस पोस्ट में जो पे था वही रहेगा,
तो मेरा जो पे फिक्सेशन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन द प्रीवियस पोस्ट, यानी ओल्ड पोस्ट। ठीक है, तो जो ओल्ड पोस्ट की प्रीवियस पोस्ट के ऊपर जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा वहां से मेरा पे फिक्सेशन होगा। तो इसमें ठीक है, और एक आइदर और, ये करेक्ट है। तो उसमें फास्ट में एक इंक्रीमेंट मिलेगा, आप जिस ओल्ड पोस्ट में हो उसमें एक इंक्रीमेंट मिलेगा। इसमें मैं आरो मार्क दे दिया। यदि फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन एक वन इंक्रीमेंट मिलेगा, इंक्रीमेंट मीन्स वही जो सपोज आप लेवल 8 में हो, अभी लेवल 9 को गए, इसी में एक इंक्रीमेंट मिलेगा। और बाकी वो जो अमाउंट है इंक्रीमेंट मिलने के बाद वो अमाउंट को हम देखेंगे लेवल 9 में कौन सा सेल में है कि नहीं है। सपोज नहीं है तो उससे जो ज्यादा अमाउंट होगा वही फिक्सेशन होगा। मगर इस केस में, जो सेकंड केस में, जैसे आप बोला कि मेरा प्रीवियस पोस्ट का जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलेगा वहां से मेरा पे फिक्सेशन होगा, अभी मैं मेरा जो प्रीवियस पोस्ट के ऊपर पे है मैं उसको रिसीव करूंगा। तो यहां पर दो इंक्रीमेंट मिलेगा, क्योंकि एक नॉर्मली आप प्रीवियस पोस्ट में हो, आपका इंक्रीमेंट आया एक मिलेगा, और बाकी प्रमोशन होने से भी और एक मिलेगा। ठीक है, आप जैसे अभी मैं बताया था, फिर और एक बार बताता हूं। ये जो पार्ट है, इस केस में आप लेवल 8 में हो, अभी लेवल 9 को चले गए, आप सेल 5 में थे और आप इस ऑप्शन को चूज किया, सेकेंड ऑप्शन को चूज किया। इस केस में क्या होगा, आप इस सेल में थे, अभी आप इस सेल को आएंगे, क्योंकि नॉर्मली एक इंक्रीमेंट मिला और आपका प्रमोशन के हिसाब से प्रमोशन जब होता है और एक इसी में और एक इंक्रीमेंट मिलता है, तो जो ये ऑप्शन में ब्रैकेट में रखा, इस ऑप्शन केस में आपको दो इंक्रीमेंट मिलेगा। और से सपोज मेरा इमेजिनरी एग्जांपल में आप सेल 7 को आ गए, उसमें जो अमाउंट होगा, सपोज ये अमाउंट है कि 66,000, ये सेल लेवल का। क्या ये अमाउंट लेवल 9 का कोई सेल में है? नहीं है, तो उससे जो ज्यादा होगा वही होगा। सपोज इससे के ज्यादा है, 66,200 है, तो यही हो जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट नहीं है। तो उसमें आप बोल रहे हो कि मेरा जो सब्सिक्वेंट, जो प्रीवियस पोस्ट का जो सब्सिक्वेंट इंक्रीमेंट मिलेगा वहां से पे फिक्सेशन होगा। उस केस में आपको दो इंक्रीमेंट मिलता है, जो आपका प्रीवियस पोस्ट के ऊपर। यदि आप बोल रहे हो कि नहीं, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन मेरा पे फिक्सेशन होगा, वहां पर आपका जो प्रीवियस पोस्ट है उसी के ऊपर एक इंक्रीमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर एडहॉक प्रमोशन। मैं बताया था आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, ओनली एडहॉक प्रमोशन हो रहा है तो आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। थर्ड वन, द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड टू एक्स कैडर पोस्ट ऑन डेपुटेशन। मैं बताया था यदि आप डेपुटेशन में एक्स कैडर पोस्ट को जा रहे हो, कि आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में प्रमोशन हो रहा है, तो उस केस में भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट पूछा है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एडहॉक प्रमोशन में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपका प्रमोशन हो रहा है तो नहीं मिलेगा, और आप डेपुटेशन में एक्स कैडर पोस्ट में जा रहे हो तो वहां पर भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, वेयर एन ऑफिसर हैज रिटायर्ड एज एडहॉक बिफोर बीइंग रेगुलराइज्ड टू दैट पोस्ट and later on has been assessed during the process of regularization and found fit by the competent authority along with his her juniors who are still in service and are eligible to avail of the option facility from a date on which the retired employee was still in service. The same option facility shall also be extended to the retired employee to be exercised as from the date when his or her junior became eligible to avail of option facility. देखिए इसमें क्या है, एक ऑफिसर वो एडहॉक प्रमोशन मिला था पर रेगुलराइज नहीं हुआ था, एडहॉक मिला था, तो एडहॉक में तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो रिटायर्ड हो गया, उसको एडहॉक प्रमोशन दिया गया था, एडहॉक प्रमोशन में तो ऑप्शन नहीं होगा, मगर उसका रिटायर्ड हो गया। रिटायर्ड होने के बाद उसका जो जूनियर है, जूनियर ने ऑप्शन दिया, क्योंकि अभी जो ऑफिसर रिटायर्ड हो गया वो एडहॉक में था, उसका रिटायरमेंट हो गया, तो उसका जूनियर ऑफिसर वो ऑप्शन देगा। ठीक है, जिस डेट में वो पोस्ट में ज्वाइन किया, ठीक है, तो वो 1 मंथ के अंदर ऑप्शन देगा। मगर अभी ये देखा गया कि बाद में देखा गया कि आपका जो रिटायर्ड ऑफिसर का पोस्ट रेगुलराइज होना चाहिए, क्योंकि वो फिट था, मगर अनफॉर्चुनेटली उसको रेगुलराइज नहीं किया गया, ओनली एडहॉक में रह गया और उसका रिटायरमेंट हो गया।
मगर उसके बाद में पता चला कि उसका अडॉक मस्ट बी फॉलोड विथ रेगुलराइजेशन, अडॉक के बाद उसको रेगुलराइज करना था, अब ये डिसाइड हुआ। तो इस केस में क्या किया जाएगा? इस केस में क्या होगा, जो जूनियर ऑफिसर को मौका दिया गया, वो जिस डेट में ऑप्शन दिया था अभी वैसे ही आपको जो रिटायर्ड ऑफिसर को भी अभी मौका मिलेगा, ऑप्शन दिया जाएगा, उसको एरियर में मिलेगा पैसा। तो जैसे जूनियर जिस डेट में ऑप्शन दिया था उसी के हिसाब से अभी भी रिटायर्ड ऑफिसर को ऑप्शन देने के लिए मौका मिलेगा, और वो ऑप्शन दे सकता है विद इन 3 मंथ्स, यहां पर 1 मंथ नहीं, विद इन 3 मंथ्स। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि वो अडॉक में था, ऑफिसर रिटायर्ड हो गया, तो उसके अलावा वहां पर जूनियर ऑफिसर वो ऑप्शन देके चला गया। ठीक है, क्योंकि अडॉक इमीडिएटली अडॉक फॉलोड विथ रेगुलराइजेशन, मगर यहां पर अडॉक रेगुलराइज नहीं हुआ, तो अडॉक पोस्ट में तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो उसका रिटायरमेंट हो गया। मगर बाद में पता चला कि वो फिट था, तो अडॉक में जो था वो उसका रेगुलराइज उसको कर देना था, और अनफॉर्चुनेट नहीं हो पाया। मगर अभी डिसाइड हुआ कि उसको रेगुलराइज करना है। ठीक है, मगर ऑफिसर तो रिटायर्ड हो चुका है, तो उस समय क्या होता, जूनियर ऑफिसर वो ऑप्शन दे दिया था, तो अभी भी रिटायर्ड ऑफिसर को ऑप्शन दिया जाएगा कि आप 3 मंथ्स के अंदर ऑप्शन दो, और वहां से आपको एरियर मिलेगा, और 3 मंथ्स यहां पर आता है, यहां पर 1 मंथ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स ईदर आर इनकरेक्ट, स्टेटमेंट को हम डिटेक्ट करेंगे। देयर इज चेंज इन पे ड्यू टू ट्रांसफर टू ए न्यू पोस्ट। आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल 23 देखिए, इसमें जब आप न्यू पोस्ट को जाओगे, आपका ट्रांसफर हो गया, अभी एक पोस्ट में थे, अभी आपका न्यू पोस्ट को ट्रांसफर हुआ, आपका पे चेंज होगा। ठीक है, चेंज इन पे, आपका पे चेंज होगा, देयर इज चेंज इन पे ड्यू टू ट्रांसफर टू ए न्यू पोस्ट। समझ रहे हो? फंडामेंटल रूल 23 यही बोला है, तो वो ऑप्शन देगा। मैं बता, पे फिक्सेशन होगा, he may at his option retain his old pay until the date on which he has earned his next or any subsequent increment में on the old scale। वो क्या है, अभी वो जैसे न्यू पोस्ट को ट्रांसफर हुआ, तो अभी जब न्यू पोस्ट में ज्वाइन करेगा, उसका 1 मंथ के अंदर वो अभी ऑप्शन देगा कि मेरा जो पे फिक्सेशन होगा फ्रॉम द डे ऑफ प्रमोशन, कि नहीं, मैं अभी मेरा जो ओल्ड पोस्ट था, प्रीवियस पोस्ट था, उसका पे में रिसीव करूंगा, वो प्रीवियस पोस्ट का जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आ रहा है उसी से मेरा पे फिक्सेशन होगा, ये हो सकता है। ठीक है, ही में रिटर्न इज ओल्ड पे अंटिल ही वैकेट्स हिज पोस्ट। जब आपका अभी आपका प्रमोशन तो हो गया, मगर वही ओल्ड पोस्ट को आप रिटर्न किया है, क्योंकि अभी पे फिक्सेशन में आप जो ऑप्शन दिया है, आप बोला है कि मैं अभी वही ओल्ड पे रिसीव करूंगा, और उसका जो ओल्ड पोस्ट का जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा वहां से मेरा पे फिक्सेशन होगा। तो जब आप ओल्ड पोस्ट को, अभी वही ओल्ड पोस्ट रहेगा, तो जब ओल्ड पोस्ट को आप वैकेट कर देते हो, छोड़ देते हो, तब उस केस में आप रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, अभी आपका प्रमोशन हो गया, आप ज्वाइन कर लिए न्यू पोस्ट में, मगर आप अभी बोल रहे हो कि मेरा ओल्ड पोस्ट का मैं पे लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट, जो ओल्ड पोस्ट का जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा वहां से मेरा पे फिक्सेशन होगा, तो अभी आपका वही ओल्ड पोस्ट ही रहेगा। ठीक है, तो जब आप ओल्ड पोस्ट को वैकेट कर दोगे, तब आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब तक आप ओल्ड पोस्ट को वैकेट नहीं किए तब तक आप रिटर्न कर सकते हो ओल्ड पे। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, आप टीजीटी थे, अभी पीजीटी हो गए, मगर अभी आप बोल रहे हो कि मेरा पे इसी के हिसाब से रहेगा, अभी मेरा वही टीजीटी पोस्ट का पे में लूंगा। ठीक है, और उसका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा, यही है ओल्ड पोस्ट, यही है प्रीवियस पोस्ट, उसके ऊपर जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा उसी से मेरा पे फिक्सेशन होगा, तो आपका पोस्ट अभी वही रहेगा। इसको जब आप जब तक इसको वैकेट नहीं कर सकते तब तक आपका ओल्ड पे रहेगा। जब आप कर दोगे नहीं, मेरा पे फिक्सेशन अभी में हो गया, तो आप पीजीटी में चले जाओगे, आपका पीजीटी डेजिग्नेशन आ रहा है, अभी तो प्रमोशन तो हो गया, मगर आपका अभी तक भी डेजिग्नेशन टीजीटी में क्यों है, क्योंकि आप अभी वही ओल्ड पोस्ट का पे ले रहे हो। जब उसको आप वैकेट, जब तक ये है तब तक आप ओल्ड पे को रिटर्न कर सकते हो। ठीक है, ये सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। थर्ड क्या है, ही में रिटर्न हिज ओल्ड पे अंटिल सीजेस टू ड्रॉप पे ऑन दैट टाइम स्केल।
जब तक आप वही ओल्ड पे रिटर्न कर रहे हो, तो ये जब आप टाइम स्केल, सपोज आप लेवल 9 में थे, अभी प्रमोशन होकर लेवल 10 हो गया, मगर अभी आप लेवल 9 का सपोज सेल 4 में थे, अभी इसी का पे ले रहे हो आप। अभी आपका प्रमोशन लेवल 10 में है, मगर अभी आप इसी का पे ले रहे हो, ये जो टाइम स्केल पे है इसी को ले रहे हो। तो जब ये बंद हो जाएगा आप लेवल 10 में चले जाएंगे, यहां पर जो पे फिक्सेशन होगा, ठीक है, अब तो यहां पर आपको इंक्रीमेंट हो गया, मैं आपको बता दिया कैसे पे फिक्सेशन होता है। आप जब लेवल 10 को चले जाओगे ऑटोमेटिकली आपका ओल्ड पे बंद हो जाएगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, आप देख लीजिए तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये फंडामेंटल रूल 23 बोल रहा है, ठीक है। तो यहां पर अच्छा तीनों इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी इनकरेक्ट पूछा है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो जब तक आप ओल्ड पे, जब आप आपका ओल्ड पोस्ट को आप वैकेट नहीं किए, तब तक आपका ओल्ड पे रहेगा। और जब तक आप ओल्ड पे का लेवल में हो, पे लेवल में हो, ठीक है, वो सीज नहीं हुआ है, तब तक आप ओल्ड पे ले सकते हो। जब आप लेवल, जैसे लेवल 9 में थे, अभी लेवल 10 को ऑलरेडी चले गए आप, इसका कोई सेल आप ले रहे हो, तो ऑटोमेटिकली तो आप ओल्ड पोस्ट को क्या कर दिए, ओल्ड पोस्ट आपका जो ओल्ड पे था वो सीज हो गया। तो यहां पर एक्चुअली तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इस केस में नॉन आंसर डी होगा, ठीक है। यहां पर दे दिया, देखिए चेंज इन पे में, ठीक है, फंडामेंटल रूल 23। तो आपको एक ऑप्शन देना है, आप ऑप्शन दे रहे हो कि मेरा जो ओल्ड पोस्ट का जो ओल्ड पे अभी मैं लूंगा, जो ओल्ड पोस्ट का जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा तब से मेरा पे फिक्सेशन होगा। तो तब तक आप क्या है, वही आपका डेजिग्नेशन वही रहेगा। सपोज मैं जैसे बताया, आप टीजीटी से आप पीजीटी प्रमोशन हुए, मगर अभी आप बोल रहे हो मैं उसी का पे लूंगा, और उसका जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट आएगा वहां से मेरा पे फिक्सेशन होगा, तो आपका पोस्ट वही रहेगा, ठीक है। चाहे वो प्रमोशन हो के आप पीजीटी में काम कर रहे हो, मगर आप पे फिक्सेशन का जो ऑप्शन दिया कि मेरा जो टीजीटी पोस्ट का जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट है वहां से मेरा पे फिक्सेशन होगा, और दिया ऑनटिल ही वैकेट्स। अब तो ये पोस्ट को वैकेट नहीं किया है ना, अभी तो भी वही टीजीटी का पे स्केल ले रहे हो भाई, इसको जब वैकेट करोगे तो ऑटोमेटिकली ओल्ड पे बंद हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्या है ना, थर्ड वन क्या है, सीजेस टू ड्रॉप पे ऑन दैट टाइम स्केल। तो आप अभी जैसे इसी में एक एग्जांपल देता हूं, आप लेवल 7 में थे, आप लेवल 8 में आपका प्रमोशन हो गया, मगर आप अभी इसी का पे ले रहे हो, तो इट मींस ओल्ड पे ले रहे हो। तो ये जब ये टाइम स्केल बंद हो जाएगा तब ऑटोमेटिकली क्या है, ओल्ड पे आपका बंद हो जाएगा। आप यहां पर शिफ्ट हो गए, जब लेवल 8 में जब शिफ्ट हो गए तब ऑटोमेटिकली इसका जो ओल्ड पे था वो सीज हो जाएगा, ठीक है। ये फंडामेंटल रूल 23 बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये ज्वाइनिंग टाइम के ऊपर है। नॉट मोर देन 1 डे ज्वाइनिंग टाइम शैल बी अलाउड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट। 1 डे ज्वाइनिंग टाइम, इसको देखिए 1 डे ज्वाइनिंग टाइम। 1 डे ज्वाइनिंग टाइम कब मिलता है, जब आप सेम स्टेशन में काम करोगे और आपका रेसिडेंस चेंज नहीं होगा। दो ऑप्शन है, तो वही दे दिया, टू ज्वाइन ए न्यू पोस्ट विद इन द सेम स्टेशन। सेकेंड वन, व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व ए चेंज ऑफ रेसिडेंस फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। इसमें ऑप्शन दिया है, सो इसमें क्लियरली ऑप्शन सी, आइदर 1 और 2। देखिए ओनली 1 डे ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप सेम स्टेशन में आपका ट्रांसफर हुआ, और क्या है, आपका रेसिडेंस चेंज होना चाहिए, आपका रेसिडेंस चेंज नहीं हुआ, ट्रांसफर होने से रेसिडेंस चेंज नहीं हुआ। ये दोनों आइदर और, ये यू आर गेटिंग ट्रांसफर इन द सेम स्टेशन, और योर स्टेशन इज नॉट योर रेसिडेंस इज नॉट चेंज्ड। तो इस केस में आपको ओनली 1 डे ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा। और एक मजा बात है, ये 1 डे ज्वाइनिंग टाइम आप नहीं लोगे तो ये लैप्स हो जाएगा, ये ईएल में ऐड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इसको आप नॉट अवेल्ड, इसको जब अवेल आप नहीं करोगे, सो नॉट अवेल्ड मीन्स इट इज नॉट इंक्लूडेड इन ईएल, वह इट इज नॉट ऐड विथ ईएल में, उसको ऐड नहीं किया जाएगा, ये ऑटोमेटिकली लैप्स कर जाएगा, ठीक है।
नॉट अवेल्ड केस में। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 को चलेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द ओल्ड हेडक्वार्टर एंड द न्यू हेडक्वार्टर इज मोर देन 1000 किलोमीटर्स बट कंटिन्यूअस ट्रैवल बाय रोड फॉर मोर देन 200 किलोमीटर्स, व्हाट वुड बी द जॉइनिंग टाइम। आप याद रखिए कि अप टू 1000 किलोमीटर्स जो ओल्ड हेडक्वार्टर और न्यू हेडक्वार्टर, तो उसमें 10 डेज और इसमें 2 डेज ऐड हो जाएगा। यदि कंटिन्यूअस ट्रैवल बाय रोड फॉर मोर देन 200 किलोमीटर्स तब इसमें 2 ऐड होगा, बट कंटिन्यूअस ट्रैवल बाय रोड अप टू 1000 किलोमीटर्स नॉर्मली 10 डेज। मगर आप ये जो 1000 किलोमीटर कवर कर रहे हो उसमें कंटिन्यूअस रोड जर्नी मोर देन 200 किलोमीटर से, तो वो 12 हो जाएगा। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन देखिए, यहां पे जो क्वेश्चन पूछा है आपका डिस्टेंस ओल्ड हेडक्वार्टर न्यू हेडक्वार्टर मोर देन 1000 किलोमीटर्स, तो उसमें नॉर्मली 12 डेज मिलेगा। मगर ये आ जाएगा कंटिन्यूअस ट्रैवल बाय रोड फॉर मोर देन 200 किलोमीटर्स, ये होगा तो उसमें और 3 डेज ऐड हो जाएगा, तो इसमें टोटल कितना हो जाएगा 15 डेज हो जाएगा, याद रखिए। तो ये आंसर 15 डेज होगा। नॉर्मली मोर देन 1000 किलोमीटर 12 डेज, मगर कंटिन्यूअस ट्रैवल बाय रोड फॉर मोर देन 200 किलोमीटर्स होगा तो उसमें और 3 डेज ऐड हो जाएगा, 15 डेज हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और एक ऑप्शन इसमें बता देता हूं, जैसे आपका अप टू 2000 मोर देन 1000 अप टू 2000 ग्रेटर देन 2000 किलोमीटर्स, इसमें वही 15 डेज रहेगा। और ये रहेगा कंटिन्यूअस ट्रैवल बाय रोड फॉर, इसमें कंटिन्यूअस आप ट्रैवल कर रहे हो रोड में फॉर मोर देन 200 किलोमीटर्स, इस केस में इसमें कुछ ऐड नहीं होगा। ठीक है, और बाकी एयर ट्रैवल कर रहे हो तो मैक्सिमम आपको 12 डेज मिलेगा। एयर ट्रैवल में ज्वाइनिंग टाइम मैक्सिमम 12 डेज मिलेगा। ये सब क्वेश्चन है, मेरा ज्वाइनिंग टाइम का रूल देख लीजिए। तो उस केस में इसमें दे दिया कि मोर देन 1000 किलोमीटर्स। अच्छा, मोर देन 1000 किलोमीटर्स में कितना मिलता है 12 डेज, और इसमें आ गया कंटिन्यूअस ट्रैवल बाय रोड फॉर मोर देन 200 किलोमीटर्स, ये तो उसके लिए कितना मिलेगा और 3 डेज ऐड हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 डेज। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 को चलेंगे। ऑन इंक्रीमेंट मे बी विथहेल्ड फ्रॉम ए गवर्नमेंट सर्वेंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी अथॉरिटी टू whom the central government may delegate this power under dash if this conduct, इसको डबल लाइन, if this conduct has not been good or his work has not been satisfactory। ये याद रखिए, आपको एक फंडामेंटल रूल 6 बोल रहा है कि उसमें एक डेलीगेशन पावर होता है। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट आपका कंडक्ट अच्छा नहीं होगा, कि आपका वर्क जो पोस्ट में आप हो, जिस पोस्ट आपको असाइन किया गया है, आप उसमें आपका जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो उस केस में आपका इंक्रीमेंट को विथहेल्ड कर दिया जाएगा। आपका इंक्रीमेंट को विथहेल्ड कर दिया जाएगा। नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को पावर देगा, डेलीगेशन ऑफ पावर, कि जब कोई एम्प्लॉय का कंडक्ट ठीक नहीं है, कि उसका जॉब सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तब वो सबऑर्डिनेट अथॉरिटी, ठीक है, आपका इंक्रीमेंट को विथहोल्ड कर सकता है। तो ये फंडामेंटल रूल 6 बोल रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें इससे पता चला, तो आप जिस अथॉरिटी के कंट्रोल में हो उसके पास डेलीगेशन ऑफ पावर है। आप सपोज योर कंडक्ट इज नॉट गुड वन, योर जॉब इज नॉट सेटिस्फैक्टरी वन, ओके, व्हिच जॉब यू गॉट एक्चुअली यू हैव नॉट जस्टिफाइड इट, ओके, तो इस केस में आपका इंक्रीमेंट को विथहोल्ड कर सकता है। कौन कर सकता है ना, जिस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंडर में आप काम कर रहे हो, क्योंकि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पावर दिया है। ठीक है, तो डेलीगेशन पावर दिया है। तो ये फंडामेंटल रूल 6 डिफाइन किया है। तो यहां पर देख लीजिए, वही चीज दे दिया, फंडामेंटल रूल 6 देखिए, अंडर रूल 6, ओके, विथहोल्डिंग एन इंक्रीमेंट, द विथहोल्डिंग अथॉरिटी शैल स्टेट द पीरियड। वो यहां पर क्या है, जैसे क्यों, कौन सा कंडीशन में, कंडक्ट हैज नॉट बीन गुड और हिज वर्क हैज नॉट बीन सेटिस्फैक्टरी, ओके, डेलीगेशन पावर है
जिस अथॉरिटी के अंडर में, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का आप काम कर रहे हो, वो आपका इंक्रीमेंट को विथहोल्ड कर सकता है। और जो ऑर्डर देगा वो ऑर्डर में मेंशन होगा कितना टाइम तक। विथहोल्डिंग अथॉरिटी शैल स्टेट द पीरियड फॉर विच इट इज विथहेल्ड। कितना टाइम, 1 ईयर की 2 ईयर, कितना इंक्रीमेंट आपका विथहोल्ड होगा, 1 इंक्रीमेंट की 2 इंक्रीमेंट। सपोज 1 इंक्रीमेंट विथहोल्ड होगा फॉर 2 ईयर्स, और यदि विथहेल्ड होगा आपका इंक्रीमेंट, क्या वो फ्यूचर इंक्रीमेंट को अफेक्ट करेगा? एंड वेदर द पोस्टपोनमेंट शैल हैव द इफेक्ट ऑफ पोस्टपोनिंग फ्यूचर इंक्रीमेंट्स। तो ये ऑर्डर में मेंशन करेगा। यदि आपका इंक्रीमेंट को विथहोल्ड किया जाता है, तब वो जो ऑर्डर देगा, ऑर्डर में मेंशन करेगा कि सपोज इंक्रीमेंट इज विथहोल्ड फॉर 1 ईयर, सॉरी 1 इंक्रीमेंट, ओके 1 इंक्रीमेंट इज विथहेल्ड फॉर 2 years, right? And it cannot affect the future increment। कि ये हो सकता है 1 इंक्रीमेंट withheld for 2 years but it affect the future increment, ऐसे ऑर्डर में मेंशन होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिए। फंडामेंटल रूल 24 ये डिफाइन किया है। ठीक है, और ये रूल 6, फंडामेंटल रूल 6 जो है वो डेलीगेशन पावर दिया है सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, an authority may grant a premature increment to a government servant on a time scale of pay। एक एडवांस इंक्रीमेंट, आपका इंक्रीमेंट डेट है अभी, जैसे इंक्रीमेंट डेट आप जो जनवरी 1 है और जुलाई 1 है, मगर उसके पहले सपोज आपका इंक्रीमेंट डेट जुलाई 1 है, मगर उसके पहले अथॉरिटी ने प्रीमैच्योर इंक्रीमेंट रिलीज कर सकता है। तो ये फंडामेंटल रूल 27 बोल रहा है कि प्री मैच्योर इंक्रीमेंट को अप्रूव कर सकता है अथॉरिटी। ठीक है, एडवांस इंक्रीमेंट आपको दे सकता है। ठीक है, मगर उसमें क्लियरली दिया है ये जो ऑन अथॉरिटी में ग्रांट ए प्री मैच्योर इंक्रीमेंट टू गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन ए टाइम स्केल ऑफ पे, तो 4 ऑप्शन है। If it has power to create a post in the same cadre on the same scale of pay, if he has financial delegation power, if the central government may delegate this power under rule 6, none of the above। इसमें 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो अथॉरिटी ने आपको प्री मैच्योर इंक्रीमेंट के लिए अप्रूव करेगा, तो उसका पावर क्या होना चाहिए? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जिस अथॉरिटी के पास क्या है, ही हैज द पावर टू क्रिएट ए पोस्ट सेम कैडर ऑन द सेम स्केल ऑफ पे। ठीक है, तो सेम कैडर में सेम स्केल ऑफ पे में, जो आपका जो स्केल ऑफ पे है, सेम स्केल ऑफ पे में सेम कैडर में वो एक पोस्ट क्रिएट कर सकता है। उसी अथॉरिटी के पास पावर है, वो एडवांस इंक्रीमेंट ओके रिलीज कर सकता है, ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर सब इनकरेक्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप फंडामेंटल रूल 27 देखिए, एडवांस इंक्रीमेंट प्री मैच्योर इंक्रीमेंट के ऊपर बोला है कि जो अथॉरिटी उसको सैंक्शन करेगा एडवांस इंक्रीमेंट और प्री मैच्योर इंक्रीमेंट, उसके पास पावर होगा, वो पोस्ट क्रिएट कर सकता है सेम कैडर में और सेम स्केल ऑफ पे में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो उसमें देख लीजिए फंडामेंटल रूल 27, ये प्री मैच्योर इंक्रीमेंट और एडवांस इंक्रीमेंट ठीक है, इसी में जो अथॉरिटी के पास पावर है, ऑन अथॉरिटी ओके, यदि वो प्री मैच्योर इंक्रीमेंट इशू करता है, तो ही हैज द पावर टू क्रिएट ए पोस्ट इन द सेम कैडर एंड ऑन द सेम स्केल ऑफ पे। ये सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस को याद रखना है, अथॉरिटी के पास ये पावर होना चाहिए। ठीक है, तब वो एक एडवांस इंक्रीमेंट इशू कर सकता है। ये फंडामेंटल रूल 27 बोल रहा है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिड्यूस्ड एज ए मेजर ऑफ पेनल्टी टू ए लोअर स्टेज इन हिज टाइम स्केल। तो लोअर मैंने क्या है, सपोज आप एक एग्जांपल दे देता हूं, इसमें लेवल आप 8 में थे, आप सेल 7 में थे, अभी आपका रिडक्शन टू ए लोअर आपका जो रिडक्शन होगा 2 स्टेजेस रिडक्शन होगा। 2 स्टेजेस रिडक्शन होगा मीन्स आप यहां पर थे, अभी कहां पर आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, C5 में आ जाएंगे। तो वही है
कि रिड्यूस्ड एज ए मेजर ऑफ पेनल्टी टू ए लोअर स्टेज इन इट्स टाइम। लोअर स्टेज मींस जो लोअर स्टेज को आप आओगे कितना रिड्यूस होगा, रिडक्शन जो होगा 2 स्टेजेस की, 1 स्टेज की, 3 स्टेजेस। सपोज आप देखिए, सपोज आप लेवल 12 में थे, इसमें सेल 7 में थे, अभी 2 स्टेजेस रिड्यूस हुआ, तो आप अभी कहां पे आ जाएंगे, C5 में आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और उसमें अथॉरिटी, उसमें जो ऑप्शन दिया है देखेंगे, द अथॉरिटी ऑर्डरिंग सच रिडक्शन शैल स्टेट द पीरियड फॉर व्हिच इट शैल बी इफेक्टिव। ये देखा कितना पीरियड। सपोज ये जो आप लोअर स्टेज को आगे कि रिड्यूस्ड बाय 2 स्टेजेस की, 1 स्टेज की, 3 स्टेजेस, ये जो है, तो वो स्टेट द पीरियड, वो ऑटोमेटिकली लिखा है ये इफेक्टिव इसी डेट से। सपोज आज का डेट, इस डेट में क्लियरली मेंशन होगा कि सपोज आज का डेट 11/1/2000 इसमें इफेक्टिव होगा और फॉर 2 इयर्स, ठीक है। तो पीरियड स्टेट करेगा। और बाकी वो नेक्स्ट है कि आपका रेस्टोरेशन हो जाएगा 2 इयर्स के बाद का, आपका रेस्टोरेशन हो जाएगा, तो पीरियड ऑफ रिडक्शन शैल ऑपरेट टू पोस्टपोन। अच्छा, यदि आप इसी डेट से आपका इफेक्टिव हुआ, ये जो रिडक्शन 2 इयर्स के लिए होगा, क्या वो फ्यूचर, जो फ्यूचर इंक्रीमेंट को पोस्टपोन करेगा ना, फ्यूचर इंक्रीमेंट को पोस्टपोन नहीं करेगा। ये भी ऑर्डर में मेंशन होगा। वेदर ऑन रेस्टोरेशन द पीरियड ऑफ रिडक्शन शैल ऑपरेट टू पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट्स एंड इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट। यदि फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन होगा तो वही, तो यहां पर मेंशन होगा कि इसी से इफेक्टिव होगा 2 इयर्स के लिए, तो आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट अफेक्ट होगा। फ्यूचर इंक्रीमेंट अफेक्ट होगा मींस जब इसी से आपका पेनल्टी स्टार्ट हुआ, सपोज आपका पे स्केल था 50,500, तो जब 2 इयर्स खत्म हुआ वही रहेगा, क्योंकि आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट क्या हुआ, फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन हो गया। फ्यूचर इंक्रीमेंट पोस्टपोन होने से वही रहेगा पे स्केल, जो 11/1/25 में था वो 10/1/27 में वही रहेगा। ये 2 इयर्स ना, वही रहेगा 50,500। 11 जनवरी 25 में जब से आपका पेनल्टी इफेक्टिव हुआ, पे क्या था 50,500 और 2 इयर्स हो गया। और इसमें ऑर्डर में मेंशन है कि पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट, तो पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट मींस हम 2 इयर्स के बाद देखेंगे। 2 इयर्स ये खत्म हो गया ना, 10/1/2027 में आपका पे वही रहेगा, क्योंकि फ्यूचर इंक्रीमेंट को ये अफेक्ट किया, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, बोथ वो क्वेश्चन पूछा है इसमें 1 और 2 करेक्ट, 1 दोनों करेक्ट है। और आप देख लीजिए फंडामेंटल रूल 29 ये बोला है, फंडामेंटल रूल 29 में है। अभी थोड़ा एक्सप्लेन उसको कर दूंगा। देखिए यहां पर लोअर स्टेज के ऊपर है, यदि आपको लोअर स्टेज में आपको रिड्यूस कर दिया जाता है, उसमें मेंशन होगा कि कब से इफेक्टिव होगा, कब से इफेक्टिव होगा और कितना इयर्स के लिए, 1 ईयर की 2 इयर्स, और उसमें क्या फ्यूचर इंक्रीमेंट, पोस्टपोन फ्यूचर इंक्रीमेंट। तो जैसे मैं बताया, सपोज आज से इफेक्टिव हुआ, आज से इफेक्टिव हुआ। अच्छा, इफेक्टिव हुआ तो कितना हुआ, 2 इयर्स के लिए हुआ, तो खत्म कब होगा, यहां तक आ जाएगा 2 इयर्स। तो उसमें आपका बेसिक पे क्या था, सपोज 50,000 था, अभी खत्म होने के बाद भी कितना मिलेगा, वही 50,000 मिलेगा, क्योंकि फ्यूचर इंक्रीमेंट जो है, फ्यूचर इंक्रीमेंट को पोस्टपोन किया। समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये ऑर्डर में मेंशन होगा। ये फंडामेंटल रूल 29 सबसेक्शन 1 बोल रहा है। चलो सबसेक्शन 2 को जाएंगे। इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिड्यूस्ड एज ए मेजर ऑफ पेनल्टी टू ए लोअर सर्विस, सपोज आप सपोज क्या है, लोअर ये हो सकता है आप पीजीटी में थे, अभी टीजीटी में आ गए, ठीक है, इसमें आ गए। जैसे जो लोअर सर्विस ग्रेड और पोस्ट टू ए लोअर स्केल, तो उसमें मेंशन होगा द पीरियड फॉर विच द रिडक्शन शैल बी इफेक्टिव, कितना पीरियड, कौन सा डेट से इफेक्टिव होगा और कितना, 1 ईयर, 2 इयर्स की, 3 इयर्स। अच्छा, आपका ऑटोमेटिकली आपका रेस्टोरेशन होने के बाद, सपोज जो पेनल्टी, जो करेंसी पीरियड था वो खत्म हो गया, उसके बाद रेस्टोरेशन जब हो जाएगा, ठीक है, अभी आप क्या है, आप पीजीटी में थे, अभी आप टीजीटी को चले गए, यहां पे चले गए, मगर 2 इयर्स के बाद आप यहां पर आ जाएंगे, पीजीटी में आ जाएंगे, तो पीजीटी के आ जाने से आपका सीनियरिटी पेनल्टी सब आ जाएगा, ठीक है। पेनल्टी करेंसी पीरियड के बाद आप जब फिर आपका ओरिजिनल पोस्ट में आ जाएंगे, आपका सीनियरिटी आप सब मेंटेन करोगे, आपका सीनियरिटी खत्म नहीं होगा, ठीक है। और उसमें सेकंड क्लियरली मेंशन होगा क्या आपका फ्यूचर इंक्रीमेंट उसमें अफेक्ट होगा,
जैसे मैं बताया फ्यूचर इंक्रीमेंट क्या है, आप अभी एग्जाम्पल सेकेंड को इसको डिफाइन करता हूं। आप पीजीटी में थे, आप अभी टीजीटी में आ गए और ये 2 इयर्स के लिए सपोज इफेक्टिव हुआ और ये फ्यूचर इंक्रीमेंट को अफेक्ट करेगा। फ्यूचर इंक्रीमेंट को, फ्यूचर इंक्रीमेंट आपका पोस्टपोन होगा और इसमें सपोज आपका सपोज पे लेवल था 60,200 था, 2 इयर्स के बाद वही रहेगा 60,200 रहेगा, क्योंकि उसमें आपको फ्यूचर इंक्रीमेंट आपको पोस्टपोन हुआ है ऑर्डर में। ठीक है, तो उसमें ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट वन, आपको द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल रीगेन हिज ओरिजिनल सीनियरिटी इन द हायर सर्विस ग्रेड और पोस्ट ऑन हिज रेस्टोरेशन टू द सर्विस ग्रेड और पोस्ट फ्रॉम व्हिच ही वाज रिड्यूस्ड। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे आप पीजीटी थे, अभी आपका रिड्यूस होकर आप टीजीटी में आ गए, इसमें आ गए कितने 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के बाद फिर आप पीजीटी में चले जाएंगे तो आपका सीनियरिटी फिनियरिटी वो सब रेस्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पे जो दिया है कि समझ में आ गया ये सेकंड, तो ये फंडामेंटल रूल 29 सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि आपका पेनल्टी जो पीरियड है वो जब खत्म हो जाएगा, आपका जो सीनियरिटी है, जो ओरिजिनल पोस्ट को आप आ जाओगे और ओरिजिनल पोस्ट में आपका वही सीनियरिटी रहेगा। ठीक है, तो ये आज इतना 15 क्वेश्चंस में डिस्कस किया फंडामेंटल रूल जो सुपर 15 MCQ पार्ट 2 था। सो प्लीज माय फ्रेंड सब्सक्राइब माय चैनल, share my channel, like my channel so that you can get notification for my upcoming videos। अभी एम्स का बहुत पोस्ट आया है, एग्जीक्यूटिव की, जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो ये बहुत यूजफुल होगा। मेरा पार्ट 3 आएगा, तो इसमें फंडामेंटल रूल बहुत डिफिकल्ट है और क्वेश्चन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आर कमिंग, मैं खुद क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, तो इस तरीके का क्वेश्चन आजकल आ रहा है, तो ये बहुत यूजफुल होगा। प्लीज फॉलो माई चैनल। थैंक यू, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।